Hello guys and welcome to the class of biology. So today we begin with your biology sessions, chapter number 2, structure of chromosomes, cell cycle and cell division. Chapter number 1 is actually not a part of your syllabus. It is given in the textbook just for revision purpose. So whatever and wherever required we will definitely revise a few things, but we'll begin from chapter number 2. In detail, I'll try to make you visualize as many things as possible. See, bio is all about imagination. Yes, it is very real. Number one, जो है वो है. Yes, yes, there is definitely a lot of physics and chemistry behind it. ठीक है, but जो है वो है. There is lot of facts and figures. There are a lot of facts and figures that you will have to remember. Yes, and there has to be a lot of imagination. See, if you have a lot of imagination, all these facts and the reality you will be able to memorize very easily. As and where possible, I'll try to give you all the tricks to memorize all of these things, but you will have to imagine. First, you need to really understand what is given in the text. Yes, ये जो reality है ये understand करो कि हाँ actually ऐसा है. First, and for that also you need a lot of imagination. And number 2, you need to imagine so that you are able to remember the facts. Okay, so let's begin the journey of biology of your textbook. I'll restrict it as much as possible to the textbook. Whatever is not there maybe in the textbook. Yeah, if I miss out a few points, please read the textbook. Once again, for your ICSE board exams, your concise textbook is the god of biology. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. But every line, every word is important. Because as I said, there are a lot of facts to be remembered. कौन सा line कब एग्जाम में पूछेंगे, you never know. Fine, so let's begin then this chapter. While teaching, the sequence in which I take and the sequence which is given in the textbook might vary a little bit, right? So that's okay, but fine, because मेरे हिसाब से जो पहले सिखाना चाहिए वो पहले सिखाना चाहिए. There is no option to it. ठीक है? See, as far as your syllabus of bio is concerned, one, everything you have covered already in class 7, class 8, class 9. Yes, this year we are going more into the details, into the micro level of everything. For example, to begin with, you will understand the micro level that you are going to study here. So, our body is made up of cell. So, ये है एक human cell, let's say. Human cell. Cell के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई होती है. There is cytoplasm all over here. There are lot of organelles. इन सब का स्टडी हमने किया है लास्ट ईयर सेल्स चैप्टर में. करेक्ट. Then there is nucleus. This nucleus has something called as chromosomes. अब डेफिनेटली हर चीज का नाम सुना है तुमने. न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नाम सुना है. And this chromosome is made up of something called as DNA, and each piece of DNA is something made up of called as genes. Yeah? So right now in this chapter, the major topic that we are starting with, the first thing is DNA. What is DNA, what is gene, and what are chromosomes is our today's discussion. So in detail, let's begin with what is a DNA. So as you know, the DNA is something like this. It looks like a spiral snake like a structure. Yes or no? Made up of two strands. Strands मतलब देखो, एक ये है, yes, minor groove, major groove. See, एक ये strand है इधर से ऐसा, which is going like this in the spiral way. Yes, and then there is this spiral thing. Yes, ये दोनों spiral ऐसे मिला करके you get one DNA. Correct? Okay, how many cells are there in human body? If you are aware, last year का कुछ याद होगा तो around 50 trillion cells, है ना? About 50 trillion cells.
Each cell has got this DNA. What is the size of one DNA? One DNA, deribonucleic acid. I hope ये तो पता ही होगा. DNA stands for deribonucleic acid. The size of one DNA in human body, human cell, एक सेल के अंदर DNA का साइज होता है around 2.2 meters. This is nothing but ऐसी बुक में नहीं होगा, ये कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ. See, you will have to read book. I'll teach whatever I know of biology. ठीक है? You read the book, क्या है क्या नहीं है वो देख लेना. हमारा हाइट भी इतना नहीं होगा. My height would be around 1.8 meters approximately. Yes? मतलब हमारी हाइट से भी बहुत ज्यादा लंबा डीएनए है. करेक्ट? और इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से सेल में कैसे बैठाया होगा, है ना? तो ये है भगवान की लीला. और कौन करेगा यार ये? इतने छोटे से सेल में, अ सेल विच कैनॉट इवन बी सीन, उसमें 2.2 मीटर लंबा डीएनए बैठा दिया, ठुसा दिया, है ना? सो एज अ फैक्ट, ऐसे वन मोर फैक्ट बिल्डर, you know, if we collect all DNA from 50 trillion cells, 50 trillion cells का सारा DNA निकाल के बैक टू बैक ऐसे जोड़ दे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक. यस, सो दिस डिस्टेंस, ये जो जितना ये डिस्टेंस क्रिएट होने वाला है ना, दैट वुड बी इवन मोर देन, मच 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 मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ. यस, in fact this is, ऐसा बोलते हैं कि this is like more than 200-300 times, है ना? more than 300 times the distance between earth and sun. अर्थ और सन के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा ना, इस डीएनए को, पूरे बॉडी के सारे डीएनए, हर एक सेल के डीएनए को निकाल करके अगर हम जोड़ दे, यस, तो उसका जो लेंथ है that will be more than 300 times the distance between sun and earth. इतना लंबा डीएनए हमारे बॉडी के अंदर बैठा है, कॉम्पैक्ट होकर के. सो जस्ट इमेजिन कि ये कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में होगा बॉडी के अंदर. गेटिंग इट? अगर यहाँ थोड़ा बहुत साइजेस देखो तो यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ है 3.4 नैनोमीटर्स, है ना? ये ऑल ऑफ दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, इमेज मैंने ऑनलाइन उठाया है. सो गेटिंग इट? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीएनए कि इतना बड़ा है बट फिर भी इतने छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर जाकर के बैठा हुआ है. एंड एक्चुअली इट इज माइक्रो लेवल, माइक्रो से भी माइक्रो है, माइक्रो से भी माइक्रो, बट वी कॉल इट एज अ मैक्रो. मैक्रो स्टडी करेंगे आज हम इसका. व्हाई मैक्रो? बिकॉज ऑफ इट्स दिस बिग साइज. इतने बड़े साइज की वजह से उसका थोड़ा माइक्रो स्टडी करेंगे, है ना? सो इसको हटा रहा हूं मैं, एंड लेट्स बिगिन विद, लेट्स ट्राई टू गो मोर इनटू डिटेल्स इनटू दिस स्ट्रक्चर. सो दिस वी विल कॉल दिस एज अ मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल. व्हाई मैक्रो? बिकॉज ऑफ इट्स साइज. मैंने बोला इतना बड़ा साइज है उसका. करेक्ट? नाउ सी, लुक एट दिस ट्विस्टेड फिगर. इस ट्विस्टेड फिगर को इफ आई ओपन, इसको ऐसे ट्विस्ट करके ओपन कर दे अगर हम लोग, करेक्ट, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. इट विल टेक अ शेप ऑफ अ लैडर. इट विल टेक शेप ऑफ लैडर. तो इसको बोलते हैं लैडर एंड रंग्स मॉडल ऑफ डीएनए. एक्चुअली डीएनए का शेप ऐसा स्पाइरल होता है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे ओपन कर दूं, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओगे, सो इसको अगर मैं ऐसे ट्विस्ट कर दूं तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. एंड दिस इज कॉल्ड एज लैडर एंड रंग्स मॉडल. LADDER, लैडर. सो देखो लैडर के जैसे दिख रहा है, एंड दीज आर कॉल्ड एज रंग्स. ये 1 2 3 जो लैडर के स्टेप्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रंग्स. तो इफ यू ट्विस्ट एंड ओपन इट, you get a ladder and rungs model of a DNA. Now look at this part. ये छोटा सा इतना पार्ट, इसको अगर हम जूम करें तो I get a structure something like this. Yes, मतलब ये जो ladder and rungs वाला मॉडल है, ये वाला इतना, इसका भी मैं सिर्फ इतना पार्ट देख रहा हूँ, इतना में भी. Yes, it is made up of something called as nucleotides. देखो यहाँ पे, what is a nucleotide?
A nucleotide is a combination of three structures. One is a sugar, another is a phosphate group, and another is a nitrogenous base. ठीक है, phosphate, sugar and a nitrogenous base. These three are all connected together. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो लैडर है, लैडर के लेफ्ट पार्ट में, left part of the ladder is made up of sugar and the phosphate molecule. See, this is a sugar molecule connected to a phosphate molecule, a sugar molecule connected to a phosphate, phosphate, sugar, phosphate, sugar, ऐसे कनेक्शन है इनका बना हुआ. Yes, phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate sugar. राइट साइड में देखो, phosphate sugar बैकबोन बोला जाता है इसको, शुगर फॉस्फेट बैकबोन. सी, सो बेसिकली जो लैडर होता है हमारा, वो लैडर के ये दोनों एंड्स जो है, दीज आर द बैकबोन्स, ये वाला और ये वाला, दीज टू आर द बैकबोन्स. दीज आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. सी, दिस शुगर एंड अटैच टू अनदर फॉस्फेट, शुगर अटैच टू अ फॉस्फेट, ऐसे. करेक्ट? सो दीज आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. And the third part is called as nitrogenous base. Yes, ये वाला, ये सेंटर में. See, this part of the sugar is connected to something called as a nitrogenous base. This part is connected to something called as a nitrogenous base. इधर से भी nitrogenous base से connected, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी. They are all connected to nitrogenous bases. These nitrogenous bases are always present in pairs. Yes, इसको बोलते हैं A2T and G3C pairs. A2T, G3C. Yes, ऐसा ही होता है. These nitrogenous bases are of four types: A, adenine, thymine, cytosine, guanine. एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन. ए और टी हमेशा साथ में कनेक्टेड रहते हैं. A2T, इसीलिए उसको नाम दिया A2T, बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसलिए टू, A2T. एंड G3C, यस, दे आर कनेक्टेड बाय थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसलिए उसको बोला G3C. गुआनाइन, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स कनेक्टेड टू साइटोसाइन. यस, उल्टा भी हो सकता है, C3G भी चलेगा और T2A भी चलेगा, लेकिन G will always be connected to C and A will always be connected to T. ये मैंडेटरी होता है एज अ फैक्ट. यस, देखो यहाँ पे दिस A is connected to इसका T. तो एक पेयर जो बेस पेयर्स है, उसमें से एक इस वाले बैकबोन से कनेक्टेड होता है, दूसरा इस वाले बैकबोन से कनेक्टेड होता है, एंड दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू बैकबोन्स, दैट फॉर्म्स द रंग्स. जो डीएनए है तुम्हारा, डीएनए का रंग्स उससे बनेगा. ऐसा ज्वाइन किया हुआ है, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बना रखी है उसने. यस, एंड देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स डॉटेड से दिया है. सी, दिस इज ए और इसके बीच में है दो बॉन्ड्स. ठीक है, ऐसे. ये देखो, ये इसमें जाके ऐसे फिट हो जाएगा, इसमें जाकर के फिट होगा, ये ऐसे. दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन गाइस, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन. ये देखो, एक, दो, तीन, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा. तो G3C आर कनेक्टेड, G and C. Yes, cytosine and guanine are connected by three hydrogen bonds always, and adenine and thymine are connected by two hydrogen bonds. देखो, A is connected to T या T is connected to A, दोनों चलेगा. G is connected to C या C is connected to G, कैसे भी चलेगा. बट GC का पेयर बनेगा, AT का पेयर बनेगा. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर. और अगर घुसो तुम लोग तो डीएनए इस चीज से बना है. व्हाट आर दीज? अरे मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है यार, कंपाउंड्स है. शुगर, फॉस्फेट,
यस, ये नाइट्रोजिनस बेसिस है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, करेक्ट। और इन सब चीजों का एक कंपाउंड है। डीएनए क्या है? डीएनए केमिकल है, यस और नो, एक काइंड ऑफ एक केमिकल है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। इट इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या होता है देखो, सपोज आई कनेक्ट C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, है ना, इसको और एक ग्लूकोज कनेक्ट कर देता हूँ, C6H12O6, और एक ग्लूकोज C6H12O6, और एक ग्लूकोज इसको कनेक्ट किया C6H12O6, और एक ग्लूकोज इसको कनेक्ट किया C6H12O6, और ऐसे ऐसे बहुत लंबा चेन बना दिया, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, एक दूसरे को ग्लूकोज कनेक्ट कर दिया, है ना। तो क्या बनेगा पता है? स्टार्च, स्टार्च बनेगा। अगर ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज एक लाइन में हम कनेक्ट कर दे तो स्टार्च बनता है। अब स्टार्च क्या है ये तो पता है तुमको, इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, करेक्ट। सो दिस सिंगल एलिमेंट, सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोनोमर, मोनोमर, यस। एंड ये पूरा जो कंपाउंड है इज कॉल्ड एज पॉलीमर, पॉलीमर, yes, so this DNA is a polymer। किसका पॉलीमर है? शुगर, फॉस्फेट और एक साइटो ये नाइट्रोजनस बेस, साइटोसाइन नहीं, नाइट्रोजनस बेस, एंड ऑल ऑफ दीज थ्री टुगेदर फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। सो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 1 शुगर, अ शुगर कंपाउंड, 2 a phosphate group, and 3 a nitrogenous base, nitrogenous base। और इन तीनों को बार 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 एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक से एक कनेक्ट कर दो, है ना। सी दिस एंटायर वन ग्रुप बिकम्स वन मोनोमर हियर, है ना, और इसके बहुत सारे चेन्स कनेक्ट कर दिए तो इट बिकम्स अ पॉलीमर। एंड पॉलीमर्स क्या है यार? कंपाउंड्स ही तो है, केमिकल कंपाउंड्स है दोस्तों, यस। सो डीएनए इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन, यस, अ रिपीटिंग स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए। एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजनस बेस। The nitrogenous base can be of 4 types: adenine, thymine, cytosine, guanine. Yes, adenine is always connected to thymine, A to C, ऐसे याद रखो उसको, T to A छोड़ दो, A to C. A is connected to T by 2 hydrogen bonds, very important, and G3C, G is connected to C by 3 hydrogen bonds. गेटिंग इट? इनके बीच में बॉन्डिंग होना चाहिए कुछ तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बॉन्डिंग होती है उसके बीच में। और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है गाइस, दिस इज द इजीएस्ट स्ट्रक्चर जो बताया है। अब सही बोलो तो समझ लो, दिस इज नॉट फॉस्फोरस, ये P लिखा है यहाँ, दिस इज नॉट फॉस्फोरस, दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप, मतलब फॉस्फोरस का कोई तो कंपाउंड है वो। ये शुगर मतलब सिर्फ S नहीं है, ये सल्फर नहीं है, ये शुगर का कोई कंपाउंड है बड़ा सा, डेंजरस सा, है ना। तो इसके फॉर्मूला में घुसोगे तो और ज्यादा डेडली हो जाएगा, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आएगा नेक्स्ट ईयर हायर क्लासेस में, और या बायो में मास्टरी करोगे तो उधर सीखोगे ये सब। यस, सो फिलहाल जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, यस, एंड दैट इज हाउ अ डीएनए इज मेड। सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स इज अ component है, component, this is a component made up of sugar, phosphate group and nitrogenous bases. These nitrogenous bases can be of 4 types: adenine, thymine, cytosine, guanine. Adenine is connected to thymine by 2 hydrogen bonds and guanine is connected to cytosine by 3 hydrogen bonds. Clear है? Yes. And ये जो डीराइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए, it is associated with one more thing, something called as histones. देखो तो हिस्टोन्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दो अच्छे से। हिस्टोन्स आर नथिंग बट
8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये देखो 8 मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन के, 1 2 3 4 और उसके नीचे 4 बैठे रहेंगे। लुक हियर, दिस ग्रीन कलर्ड आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स, HISTONE, हिस्टोन प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन है यहाँ, 4 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, 4 प्रोटीन, सॉरी 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, नॉट 4। These are called as octamers, octamers बोलते हैं, I guess, histone octamers, histone octamer, yeah, these are histone octamers, histone proteins है। क्या करते हैं ये, इसका कोई काम नहीं है ऐसा, वैसे काम है फिलहाल। What are histone octamers? This is a combination or group of 8 protein जिसके अराउंड डीएनए को वाइंड किया है। ये जो येलो कलर दिख रहा है ना, दिस इज योर डीएनए। यस, तो देखो ये डीएनए यहां से आया, यस, ये पहले इसके ऊपर ऐसे कॉइल किया, इसको इतना सारा कॉइल किया, फिर दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल कर दिया, फिर तीसरे के ऊपर ऐसे कॉइल कर दिया, यस, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इट कंटिन्यूअस। यस, पहले के ऊपर दूसरे के ऊपर, सी लुक एट दिस ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये आया यहाँ पर, इस पे कॉइल किया, देन द डीएनए गोज एंड इज कॉइल्ड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, देन इट गोज ऑन, देन कॉइल्ड ऑन अनदर octamer. So histones are nothing but, histones are proteins, 8 histone proteins होते हैं, 8 histone proteins which form histone octamer। और ऐसे हजारों लाखों ऑक्टामर्स होते हैं बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर, और उनके ऊपर सी दीज आर ऑक्टामर्स लाइक दिस, है ना, और ये डीएनए आया, इसके ऊपर ऐसे कॉइल किया है, इसके ऊपर ऐसे कॉइल किया है, इसके ऊपर ऐसे कॉइल किया है, इसके ऊपर ऐसे कॉइल किया है। अब तुम बोलोगे ऐसे क्यों किया है, अरे नहीं तो जगह कैसे कम होगी। इट इज लाइक द थ्रेड, सी द थ्रेड विच वी यूज फॉर सीविंग मशीन, सीविंग मशीन होता है ना, या फिर काइट, पतंग उड़ाने के लिए जो मांझा यूज करते हैं, यस, ऐसे तो उसका लेंथ कितना बड़ा होता है यार, तो विल इट बी यूजफुल फॉर यू, नो, यू हैव टू कॉइल इट अराउंड समथिंग। तो ऐसा एक ये होता है बंडल, एंड उसके अराउंड सिलेंड्रिकल, उसके अराउंड तुम उसको कॉइल करते हो, हाँ कि नहीं। अब जिनके पास बहुत ज्यादा है, यस, जिनके पास 2-2 3-3 ये होता है, करेक्ट, तो क्या करते हो, एक नीडल बॉक्स होता है, नीडल बॉक्स, यस नो, उसमें एक रखते हो थ्रेड का बंडल, फिर उसके बाजू में एक और थ्रेड का बंडल, उसके बाजू में एक और थ्रेड का बंडल, उसके बाजू में एक और थ्रेड का बंडल, ऐसा ही होता है ना नीडल बॉक्स। नीडल एंड सीविंग मशीन का जो बॉक्स होता है, अलग अलग कलर के बंडल्स होते हैं यहाँ पे, हाँ कि नहीं। दिस इज हाउ यू कीप इट। और अगर ये पूरा थ्रेड तुम एक साथ देखो, एंड इफ यू ओपन इट, यस, ये अगर 5 थ्रेड 6 बंडल्स भी ले लो, 7 बंडल्स ले लो थ्रेड के, और उसको अगर पूरा ओपन करो ना, तो तुम्हारे पूरे प्लेग्राउंड के ऊपर वो जाके फैल जाएगा स्कूल के, इतना सारा थ्रेड बाहर निकलेगा, यस और नो, यस। तो इतना बड़ा है वो, और उसको एक छोटे से जगह पे हमको रैप करके रखना है ना। तो ये हिस्टोन्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मेक अप 1 हिस्टोन ऑक्टामर, और एक ऑक्टामर के ऊपर ऐसा डीएनए कॉइल किया है, उससे दूसरे ऑक्टामर पे जाता है, उससे तीसरे ऑक्टामर पे जाता है, ऐसे कॉइल कर करके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। सो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑक्टामर्स एंड अ ह्यूज वेरी लॉन्ग डीएनए, यस, एंड 1 octamer along with the DNA coiled on it is called as a nucleosome, nucleosome, yes। देखो यहाँ पे, this is the structure, ये देखो, सिर्फ ये जो 8 बॉल्स है ना, ये 8 लड्डू जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, सिर्फ लड्डू, वो लड्डू सिर्फ है हिस्टोन ऑक्टामर्स। जब उसके ऊपर ये डीएनए को कॉइल कर दिया, आफ्टर कॉइलिंग इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, यस।
ये जब लड्डू अकेले बैठे हैं 8, तो इट इज अ ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। फिर डीएनए आया इधर से, इस पे कॉइल हो गया, यस। नाउ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्टामर प्लस द डीएनए, yes, is called as nucleosome, है ना। so nucleosome is nothing but it is each complex, ये हर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टामर एंड डीएनए इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम। एग्जैक्ट डेफिनेशन टेक्स्ट बुक से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन टेक्स्ट बुक से देख लें, करेक्ट। and millions of these nucleosomes combined together, ये देखो यार, यहाँ पे इतने बहुत दूर दूर दिख रहा है, यस और नो, इतने दूर दूर नहीं है, वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट। millions of these nucleosomes combined to give one chromosome. So this one chromosome is made up of millions of nucleosome, yes। तो मतलब क्रोमोसोम बड़ा है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड ऑक्टामर। डीएनए इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, एंड नाइट्रोजनस बेस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, यस। सो बड़े से छोटे की तरफ देखो तो ऐसे कुछ समझ में आएगा, दिखाई देगा, समझ में आया, यस। सो इफ यू लुक एट इट इन अदर वे, ये देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है खतरनाक सा, सी दिस इज वन डीएनए, यस। एक डीएनए ऐसा दिखेगा, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स, सी दिस इज वन न्यूक्लियोसोम एकदम पास में चिपका करके एक दूसरे के अंदर घुसा के पैक किए गए, ठूस के भरे हुए हैं, इतना कॉम्पैक्ट उसका पैकिंग है। न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड अ हिस्टोन, यस। ये देखो क्रोमैटिन, वन क्रोमैटिन, मतलब थोड़ा सा, दिस इज तो भी जूम किया हुआ व्यू ऑफ क्रोमैटिन। इतने सारे न्यूक्लियोसोम्स एक साथ जब पैक किए जाते हैं एक दूसरे से, यस, थ्रू डीएनए, इट बिकम्स अ क्रोमैटिन, यस। और क्रोमैटिन लूप, मतलब बहुत सारा क्रोमैटिन जब एक साथ आ जाता है ना। और कॉम्पैक्ट साइज कंडेंस्ड क्रोमैटिन लूप, और इतना सारा जब क्रोमैटिन एक साथ आता है तो बनता है एक क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? The size of DNA is about 2 meters, 2.2 meters in one cell. वन सेल का डीएनए का साइज है 2.2 मीटर्स। ये 2.2 मीटर्स थ्रेड ऐसे रैप किया जाता है। यार 2.2 मीटर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है रे। तुम एक थ्रेड लो 2.2 मीटर का, यस, यू कैन रैप इट अप अराउंड द नीडल, यू कैन रैप इट अप ऑन योर लिटिल फिंगर। यस, लिटिल फिंगर क्या, लिटिल फिंगर का भी जो नेल है सिर्फ उसके ऊपर रैप अप कर सकते हो उसको। यस, लेकिन ये बहुत कॉम्पैक्ट है बच्चों। यार ये भी तो बहुत छोटा है ना, 2 माइक्रोमीटर थिकनेस है इसका, सिर्फ 2 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर नैनोमीटर, सो बहुत छोटा है। तो उसको रैप करने के लिए भी छोटी चीजें चाहिए, और इतनी छोटी चीजें हैं। गेटिंग इट? तुम्हारे बुक में इसके बदले दूसरा डायग्राम दिया रहेगा, मैंने थोड़ा अच्छा डायग्राम बताया होपफुली, ठीक है ना। सो तुम बुक वाला डायग्राम देख लेना चाहो तो। Yes, that means that leads us to something on chromosome. So what is a chromosome? Chromosome is made up of, अच्छा एक और चीज, ये जो डीएनए और ये है ना न्यूक्लियोसोम्स, यस, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। इसको अगर मैं जूम करूं तो इसके अंदर मुझे मिलेगा डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए एंड हिस्टोन मिलेगा। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन, क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन।
So what is chromatin? Chromatin is a thread-like structure which is made up of two components, DNA and histone. Yes, ये क्रोमैटिन को अगर मैं कॉम्पैक्ट कर दूं, देखो इतना लंबा मैंने बनाया है क्रोमैटिन, इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट कर दूं ऐसे, बहुत कॉम्पैक्ट, ये इतना और कॉम्पैक्ट, ये इतना कॉम्पैक्ट कर दिया उसी थ्रेड को, ये ऊपर वाले थ्रेड को और कॉम्पैक्ट किया, यस, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया, पर्टिकुलर पैटर्न में अगर अरेंज किया तो वो बनता है क्रोमोसोम। हम देखेंगे कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्जन कैसे होता है, दैट विल स्टडी सेल डिवीजन के वक्त वगैरह हम लोग वो डिटेल प्रोसेस देखेंगे। यस, विल डू इट थ्रू सम सिमुलेशंस, बहुत अच्छे से विल ट्राई टू कवर इट अप, ठीक है। सो क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, उसको जब कॉम्पैक्ट करके कोई पैटर्न में अरेंज करेंगे तो क्रोमोसोम मिलता है ना। नाउ व्हाट इज अ क्रोमोसोम, हाउ डज अ क्रोमोसोम लुक लाइक? This is a structure of chromosome. Now इसमें से मैं कुछ चीजें हटा देता हूँ जरा। Okay, so this is how a chromosome looks like. Yes, अगर इसका स्ट्रक्चर देखो, so chromosome basically is made up of सेंट्रोमर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सेंट्रोमर। तो सेंटर में यहाँ पर एक सर्कल है जिसको बोलेंगे सेंट्रोमर। देन देयर आर टू आर्म्स ऑन इट, यस, अच्छा ये शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म भूल जाओ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज आर्म्स, ARMS, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है उसका। लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, राइट, थोड़ा सा बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका। गाइस इमेजिनेशन, यस, दृश्यम मूवी देखा है क्या? दृश्यम जिन्होंने देखा रहेगा उनको पता रहेगा, वो कैसे 1 2 डेट्स 3 4 5 3 4 5 ऐसे दिखा दिखा के लोगों के दिमाग में फिट करता है। तो ऐसे ये इमेजेस को अपने दिमाग में फिट करो, इसके बीच में सेंट्रोमर होता है, सेंट्रोमर, यस, दीज आर कॉल्ड एज आर्म्स, ठीक है। दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम, ये जो है ना इधर लेफ्ट, इसको बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो जब डुप्लीकेट होता है दो, तो ऐसे दो क्रोमोसोम एक सेंट्रोमर से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हम सेल डिवीजन के वक्त पढ़ेंगे। जब ये दो में डिवाइड होता है, सो दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऐसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, जुड़वा जो जुड़े हुए होते हैं, यस, होता है ना, ऐसे कुछ एबनॉर्मलिटी से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कि किसी का हेड जॉइंट होता है, किसी का हिप जॉइंट होता है, वैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो हमेशा जॉइंट रहते हैं, यस, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हो गया सेंट्रोमर, दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दीज आर कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, करेक्ट। तो दिस इज जस्ट बेसिक ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जितना बुक में दिया रहेगा, यस, कि क्रोमोसोम्स ऐसे दिखते हैं। बुक में के गंदे वाले फोटोज तुम लोग देख लेना, मैं अच्छे वाले दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स? सो बेसिकली गाइस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। द फर्स्ट वन इज, अच्छा 1 सेकेंड, ignore this, fine. The types of chromosomes are defined by the location of centromer. जो ये centromer है ना, ये this is called as centromer, yes, इसके पोजीशन पे बेस्ड ऑन ये कहाँ प्लेस्ड है और उसके आर्म्स कैसे है, एक आर्म छोटू है, एक मोटू है, एक बड़ा है, एक छोटा है, या व्हाटएवर, यस, यू डिसाइड वेदर द क्रोमोसोम का सेंट्रोमर का पोजीशन क्या है, फाइन। वेट, लेट मी पुट इन अ बेटर फिगर। ओके गाइस, फॉरगेट दैट इमेज, ये इमेज देखो, ये बेटर है ना, ये गंदा था, थोड़ा कंफ्यूज करेगा तुमको वो, ठीक है। सो बेस्ड ऑन वेयर द सेंट्रोमर इज प्लेस्ड, these are of 4 types. First, telocentric, TELO, telocentric. टीलो मतलब क्या? टीलो मतलब one end. See, the centromer is present at one of the ends, hence it is called as telocentric.
क्रोमोसोम. यस. देन उसके बाद ये देख लो मेटासेंट्रिक. मेटा मतलब मिडिल. मेटा मतलब मिडिल. व्हेन द centromere is at the middle of the chromosome, then it is called as metacentric. Yes. Now acrocentric means near one end. near end. acro का मतलब होता है near end. मतलब देखो ये सेंट्रोमर है, इट इज प्लेस्ड नियर वन ऑफ द एंड्स. ये देखो ये जो आर्म्स है ना, शॉर्टर आर्म्स, ऐसे शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म ऐसे होता है यार. See, there is one arm which is called as short arm and the other one is called as long arm. Yes. तो short arm है देखो, this is the shorter arm. So when it is placed near one of the ends, ये देखो अगर ये पूरा साइज है and this is the end of the chromosome, so it is placed near one of the ends. Hence it is called as acrocentric, that is near one end. And then submetacentric. देखो मैंने बोला मेटा का मीनिंग होता है मिडल. सब मेटा मतलब नियर द मिडिल. नियर द मिडिल. एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, मिडिल के पास में, ऑलमोस्ट एट द सेंटर, थोड़ा 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 नियर द सेंटर. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. क्लियर है? यस. सो आज क्या पढ़ा हमने? अगर मैं यहां से चालू करूं, chromosomes was our biggest element today. Yes. chromosomes होता है पैटर्न. पैटर्न ऑफ क्रोमैटिन. अच्छा बच्चों, थोड़ा बहुत स्पेलिंग वेलिंग तुम खुद से देख लेना, फटाफट लिखते हो. राइट. पैटर्न ऑफ क्रोमैटिन. अब क्रोमैटिन क्या है? एक थ्रेड है विच इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन्स. What is DNA? DNA is nothing but nucleotides का monomer. It is a polymer, sorry. Polymer of nucleotides. What are nucleotides? One nucleotide is made up of sugar, 2 phosphate and 3 nitrogenous base. Yes. What are histones? These are 8 proteins clubbed together to give histone octamers. Yes. और इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को, that is DNA and histones, so you get chromatin, and when they are arranged you get chromosomes. Nitrogenous base 4 टाइप के हैं, ये देखा हमने. ATCG, अभी पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, और A2T होता है, G3C होता है. Yes, this is connected to thymine by 3 bonds, है ना. Adenine, this adenine is connected to thymine by 2 hydrogen bonds, and guanine is connected to cytosine by 3 hydrogen bonds. Correct? So that's it is the topic of our discussion today. कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेल डिवीजन, सेल साइकिल, पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे. सर गाइस, दिस इज वन टॉपिक, वन एंटायर टॉपिक कंप्लीटेड. ठीक है, तो नया टॉपिक सिखाने के लिए पूरा एक एंटायर सेशन लग जाएगा. सो दैट एंटायर सेशन विल कवर इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन. फाइन. प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक टिल हियर. जहां तक सिखाया है 2.1, 2.2, 2.3 हो गया शायद, आई डोंट नो. टॉपिक्स देख लेना एक बार. यस, रीड टेक्स्ट बुक. आई वोंट गिव यू मच टाइम टू स्टडी फॉर बायोलॉजी, इसलिए रोज का रोज पढ़ो. टेस्ट आने वाली है बहुत जल्दी, चैप्टर टेस्ट एज वेल एज फुल सिलेबस टेस्ट. ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग. सी यू गाइस, टेक केयर, होप यू एंजॉयड द सेशन. बाय.